محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ جرنلسٹ پر حملہ کرنے کے متعلق ایم پی ڈی اروند و بی جے پی قائدین کی جانب سے پھیلائی جانے والی افواہوں کو پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے من گھڑت باتیں قرار دیا۔ ضلع کلکٹریٹ میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں عرضی داخل کرنے کے لیے آہبے جوڑے کی جانب سے اقدام خودکشی کرنے کا واقعہ۔ درگاہ شریف حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پہاڑ پر وقف بورڈ کی جانب سے اندھیری نگری چوپٹ رات درگاہ شریف کی نگرانی کے لیے کمیٹی کا قیام نہیں۔ 2 ماہ بعد درگاہ شریف کے کھولے گئے غلے، لیکن نہ ہی کوئی کمیٹی، نہ ہی کوئی سرکاری عہدیدار اور نہ ہی کوئی صحافی موجود۔ رقم کی واضح گنتی نہیں، سونے چاندی کا بھی حساب کل۔ انسانی اقدار کی بنیاد پر بھیمگل مدرسے کے فارغین کا مثالی کارنامہ۔ گزشتہ 10 سال کے دوران حافظ قرآن بننے والے طلباء کی جانب سے بازار میں ہندو مسلم اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت لنگر کا اہتمام۔ سوشل میڈیا پر صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلانے والے افراد کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین شہری صدر شکیل احمد فاضل و کوآپشن ممبر شہباز احمد کی شکایت پر مقدمات درج۔ شہر نظام آباد میں گزشتہ کچھ یوم سے موٹر سائیکل گاڑی و آٹو کی سرقے میں ملوث سارقوں کو تحویل میں لے کر ان کے قبضے سے 8 موٹر سائیکل 2 آٹو کو تحویل میں لینے کا سی پی کیان ناگراجو نے میڈیا کے ذریعے کیا اظہار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ درگاہ شریف حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پہاڑ پر وقف بورڈ کی جانب سے اندھیری نگری چوپٹ راج درگاہ شریف کی نگرانی کے لیے کمیٹی کا قیام نہیں۔ 2 ماہ بعد درگاہ شریف کے کھولے گئے غلے، لیکن نہ ہی کوئی کمیٹی، نہ ہی کوئی سرکاری عہدیدار اور نہ ہی کوئی صحافی موجود۔ رقم کی واضح گنتی نہیں، سونے چاندی کا بھی حساب گل۔ بانسوارہ حلقے کی درگاہ بڑا پہاڑ جو 2 ماہ سے وقف بورڈ کے تحویل میں تھی، آج درگاہ بڑا پہاڑ کے غلوں کو وقف بورڈ اسسٹنٹ سیکرٹری عقیل حسین کی زیر نگرانی میں کھولا گیا۔ رقم کی گنتی رات 12 بجے تک رہی۔ وقف بورڈ انسپکٹر عبدالساجد کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جملہ 4 عدد غلوں میں رقم گنتی کے بعد 2,71,400 روپے حاصل ہوئے، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ سابقہ میں ایک مقامی سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے رقم کی گنتی کی جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بغیر کسی اطلاع کے غلوں کو کھولا گیا۔ اس کی اطلاع صحافیوں کو ملنے پر درگاہ بڑا پہاڑ پہنچ کر تمام تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وقف بورڈ عہدیداروں نے صحافیوں کو تصویر لینے یا ویڈیوگرافی کرنے پر منع کیا اور بار بار روم کا دروازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ عہدیداروں کی ایسی گرونی حرکت پر صحافیوں نے اس کی شکایت ریاستی وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کو دی، جس پر چیئرمین محمد سلیم نے سی ای او وقف بورڈ سے بات کرنے کا تیقن دیا، لیکن یہاں پر وقف بورڈ عہدیداروں کی صاف صاف منمانی کرتے دیکھا گیا، اس لیے کہ چلر پیسوں کو گنتی کے بغیر گتے کے طور پر ایک شخص کو 75,000 روپیوں میں چلر پیسے دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ سونا چاندی کا کوئی حساب نہیں۔ وقف بورڈ انسپکٹر عبدالساجد نے بتایا کہ ان تمام چیزوں کو سی ای او صاحب کے حوالے کر دیا گیا۔ رقم گنتی کے دوران وقف بورڈ عہدیدار وزارت اعلیٰ محمد شبیر، وقف بورڈ انسپکٹر عبدالساجد اور وقف عملہ موجود تھا۔
सोशल मीडिया पर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने वाले अफराद के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरी सदर शकील अहमद फाजिल व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरी सदर मोहम्मद शकील फाजिल व माउंट कॉर्पोरेटर शहबाज अहमद की जानिब से निजामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला की हिदायत पर शहर की 5 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया पर तशहीर करने वाले अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिस पर शहर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शेख जाकिर और हैदराबाद के एडवोकेट खलील अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मजलिस की शनाख्त को अवाम में खराब करने की गर्ज से चंद अफराद सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें नशर कर रहे हैं। इसी तरह की हरकत करते हुए एक तस्वीर में तब्दीली करते हुए शहर निजामाबाद व हैदराबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हुए कहा जा रहा था कि इन्होंने RSS कौमी सदर से खुफिया मुलाकात करते हुए बताया जा रहा है। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल मिला, जिसमें जिले की दीगर मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम प्रजावानी से रुजू होते हुए इनसे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल से वाबस्ता दरख्वास्त कलेक्टर नारायण रेड्डी के हवाले करने पर इन्होंने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर हासिल करदा दरख्वास्तों से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी। बालकुंडा की तरक्की के लिए दिलचस्पी न लेने वाले MP DRVN को रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के खिलाफ तनकीद करने का इखलाकी हक न होने का TRS पार्टी कायदीन ने मीडिया के जरिए किया इजहार। भीमगल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी सिटी शाख के जेर निगरानी में मीडिया के इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब भीमगल मंडल व भीमगल शहर को म्यूनसिपलिटी में तब्दील किए जाने के बायस शहर की तरक्की की जानिब रवा दवा होने की बिना पर BJP कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर जहनी दिवालियापन में मुब्तला होकर गैर जरूरी इल्जामात आयद करते हुए इखलाकी दिवालियापन का मुजाहरा करने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब मुनक़दा तरक्याती कामों के मुतालिक अवाम को तहरीरी तौर पर जवाब देने के लिए तैयार है। क्या BJP कायदीन मरकजी हुकूमत के मुतालिक तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफियत करवाने सामने आने का सवाल किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि म्यूनसिपलिटी कायम होने के बाद से आज तक तकरीबन 50 करोड़ रुपए के मालियती रकम से म्यूनसिपलिटी में जारी तरक्याती कामों से मुकामी अवाम खुशी का इजहार करने की बात बताई और कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से खाद की कीमतों में इजाफा करते हुए किसानों पर माली बोझ आयद करते हुए किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी तरह मरकज की मोदी हुकूमत कॉर्पोरेट इदारों के मफादात के लिए मुखालिफ किसान पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR किसानों के मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखे की सरबराही रैतु बंधु के तहत गुज़िश्ता 7 साल में किसानों में 50,000 करोड़ रुपए तकसीम किए गए और हर एक किसान को 5 लाख रुपए का बीमा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु समिति मंडल सदर बदावत शर्मा नायक, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन G बाला भगत, काउंसलर्स M लिम्बाद्री व दीगर ने शिरकत की। ఎటు దొరికితే అటు నోటికి వచ్చిన విధంగా స్థాయిని మించి మా అన్నగారిని అలాగే మా పార్టీ పెద్దలని విమర్శించడమే పెట్టుకున్న మన భీమ్గల్ బుడబుక్కల లీడర్కి ముఖ్యంగా గ్రామ శాఖ నుంచి TRS మున్సిపల్ శాఖ నుంచి హెచ్చరించి మరి చెప్తున్నాను. ప్రతి విషయంలో నువ్వు ఏ విషయం అయితే నిన్న మాట్లాడినావో 100 పడకల ఆసుపత్రులు కానీ భీమ్గల్ అభివృద్ధి కానీ ప్రతి విషయం ప్రశాంత్ అన్నగారే చేస్తారు. మా అన్నగారే, మీ అన్నగారికి చెప్పన్నావు కదా, మా అన్నగారే చేస్తారు. शहर निजामाबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत सईद बहताब के छोटे बेटे व हरकियाती कायद अब्दुल अजीज अमोदी के मामू मोहम्मद बहताब का साना इर्तहाल। शहर निजामाबाद के इलाके बरकतपुरा के रहने वाले मशहूर मारूफ शख्सियत सईद बहताब के छोटे बेटे मोहम्मद बहताब का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया, जिस पर इनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि मरहूम एक खुश दिल और मुखलिस शख्सियत के मालिक थे और वो गुज़िश्ता चंद सालों से हैदराबाद के इलाके बारकस में मुकीम थे। इनकी नमाज जनाजा व तदफीन हैदराबाद में ही अदा की गई, जिसमें शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने शिरकत करते हुए इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की। वाज़ेह है कि मरहूम तेलंगाना जन समिति हरकियाती कायद अब्दुल अजीज अमोदी के हकीकी मामू थे।
जर्नलिस्ट पर हमला करने के मुतालिक एमपी डीआरविन व बीजेपी कायदीन की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों को पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी मनगढ़ंत बातें करार दी। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में सोशल मीडिया से खिताब करते हुए एमपी डीआरविन व इनके वालिद मोहतरम डी श्रीनिवास और साबिक़ा मेयर संजय के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और बताया कि वाईकुंठा एकादशी के मौके पर तिरुपति पहुंचकर वापस आने के बाद कोरोना से मुस्बित पाए जाने पर खुद को होम आइसोलेशन कर लिया, लेकिन इस मौके पर एमपी डीआरविन व बीजेपी कायदीन की जानिब से जर्नलिस्ट पर हमला करने के मुतालिक मनगढ़ंत बातें करना जहनी दीवारियापन में मुब्तला होने की निशानी करार देते हुए डीएस एंड फैमिली को झूठ का गढ़ करार दिया। मदरसा माज बिन जबल ट्रस्ट बोधन की जानिब से मस्जिद की तामीर काम में हिस्सा लेने की अपील। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद रिसाई खासमी बानी व नाजिम मदरसे के मुताबिक मदरसा माज बिन जबल बोधन में मस्जिद का फर्स्ट फ्लोर का तामीरी काम चला है। 23 पिलर की रॉड का काम हो गया है। अनकरीब सलाब डालना है। मस्जिद की तामीर के लिए प्लास्टिक के पानी की टाकी, रेती, सीमेंट, सलाख, ईंट, वाटरिंग और मीनार और सेंटरिंग की जरूरत है। मस्जिद में एक मुसल्ली, एक आदमी की नमाज पढ़ने की जगह की तामीर के लिए 5000 रुपए का खर्च तय किया गया है। इसी तरह एक थैला सीमेंट के लिए 400 रुपये तय है। जुमला 500 थैले सीमेंट की जरूरत है। अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेने का ये सुनहरा मौका है। मस्जिद की तामीर में थोड़ा भी हिस्सा लेंगे तो अल्लाह ताला मुकम्मल मस्जिद बनाने का सवाब अता फरमाएंगे। साहिब खैर हजरात अपने ज़ख़ीरा आखिरत के लिए या अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए एक मुसल्ली के लिए 5000 या कम अज कम एक थैला सीमेंट के लिए 400 रुपए का ताउन फरमा कर सवाब जारिया हासिल फरमाए। ख़वातीन हजरात अपने महर की पाकीज़ा रकम मस्जिद की तामीर में सवाब की नियत से दे सकती है। मदरसे की मस्जिद हमेशा मेहमानान रसूल की तिलावत, तालीम और नमाज से आबाद रहती है। गूगल पे नंबर 7013392264, मोबाइल नंबर 9441086528, अकाउंट मदरसा 622657412008। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के ताउन से मस्जिद माज बिन जबल के फर्स्ट फ्लोर पर 23 पिलर रेस हो चुके हैं। अब सलाब का काम बाकी है। सलाब के लिए 400 थैला सीमेंट की ज़रूरत है। एक थैले के लिए 400 रुपये की कीमत तय की गई है। अंबुजा सीमेंट इस्तेमाल की जा रही है। साहिब खैर हजरात मस्जिद के सलाब के लिए अपने ज़ख़ीरे आखिरत के वास्ते या अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए एक थैला सीमेंट का ताउन फरमा कर सवाब जारिया हासिल फरमाएँ। राब्ते के लिए और गूगल पे नंबर ताउन जमा करने के लिए नोट फरमा लें। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता कुछ यौम से मोटरसाइकिल, गाड़ी व ऑटो की सरखे में मुलविस सारिकों को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल, 2 ऑटो को तहवील में लेने का सीपी कियार नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियार नागराजू ने सीपी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि डीसीपी अरविंद बाबू की जेर निगरानी में 4 टाउन पुलिस स्टेशन एसआई संदीप ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा सुबह के अव्वलीन सातों में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनखी अमल में लाने के दौरान विनायक नगर की तरफ आने वाले ऑटो को रोकने की कोशिश की गई। इस वक्त ऑटो में मौजूद 3 अफराद राह फरार इख्तियार करने की नाकाम कोशिश करने वालों को तहवील में लेते हुए तहकीकात करने के बाइस सारिकों की जानिब से दीगर मुकामात पर ऑटो मोटरसाइकिल गाड़ियों का सरखा करने के मुतालिक तफसीलात फराहम करने पर शेख मुजाहिद, शेख मोहसिन, शेख मतीन को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल, 2 ऑटो और 4,40,000 मालियती रकम को हासिल करने का इजहार किया। कृष्णा इंस्पेक्टर వారి టీంలో ఉన్న మా యొక్క సిసిఎస్ సిబ్బంది అందరూ కలిసి టీం వర్క్తోని షేక్ ముజాహిద్దీన్ ఎలియాస్ సోహెల్ ఎలియాస్ చోటు తర్వాత షేక్ మొహసిన్ ఎలియాస్ లాలా తర్వాత షేక్ మతీన్ ఇతను ఇద్దరు మన నిజామాబాద్ పట్టణవాసులు. ఇంకో అతను మతీన్ ఎవరైతే షేక్ మతీన్ ఉన్నాడో ఇతను హిమాయత్ నగర్ మహారాష్ట్ర అతను. వీరి నుండి సుమారుగా 4,40,000 విలువ గల 8 మోటార్ సైకిల్స్ తర్వాత 2 ఆటోలను సీజ్ చేయడం జరిగింది. సీజ్ చేసి వీరిని ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది.
యొక్క సిబ్బందిని నేను అభినందిస్తున్నా. వారికి తగిన పారితోషికం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రివార్డ్ అమౌంట్. वडियाडपल्ली देहात में टीआरएस पार्टी मंडल सदर सत्यम के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए मंदिर में खुसूसी पूजा अंजाम दी। वडियाडपल्ली देहात में टीआरएस पार्टी मंडल सदर सत्यम की जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए मौजे में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए सेहत व उम्र दराज के लिए दुआएं की। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, सरपंच फोरम, मंडल सदर शंकर गौड़, राजेश्वर किशन, लिंगन्ना, मोहन व दीगर ने शिरकत की। ఎమ్మెల్యే గారు తొందరగా కోలుకోవాలని ఒడ్డెటమ్మ తల్లి దగ్గర ప్రత్యేక పూజలు జరిపించడం జరిగింది. ఎందుకంటే మా ఎమ్మెల్యే గారికి పాజిటివ్ రావడం అనేది బాధాకర విషయమే. అయినా కూడా తొందరగా కోలుకుంటాడని మేమందరం అనుకుంటున్నాము. అమ్మ దయ ఉంటుంది, 100% తొందరగానే కోలుకుంటాడు. అదే జరగాలని మేము ఒడ్డెటమ్మ తల్లిని కోరుకోవడం జరిగింది. जिले कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अर्जी दाखिल करने के लिए आए हुए जोड़े की जानिब से इक़दाम खुदकुशी करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से। बोधन शहर के आचनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले दर्शन बंधैया वो दर्शन वाई ने जिस्म पर केरोसिन छिड़क कर इक़दाम खुदकुशी करने वालों को पुलिस मुलाजमिन ने बर वक्त रुकावट डालकर तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया, जिसमें मुस्तहिक़ ने कहा कि 30 साल क़ब्ल से काश्त करदा 2 एकड़ अराजी पर मबनी धरनी में दीगर के नाम से पासबुक जारी होने पर सदमे का इजहार किया और बताया कि साबिक़ा मुकामी सरपंच की जानिब से हमले की कोशिश करने की बात बताई और इस मसले के हल के ताल्लुक से आरडीओ राजेश्वर को फरियाद करने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी तरह से पुलिस मुलाजमीन के इल्म में लाने के बावजूद भी इनकी खामोशी माने खैज होने का इजहार किया। మా నాన్న 30 సంవత్సరాల క్రితము సాగబైనామ కింద 4 భాగాలు 20 గుంటలు పొలం కొన్నాడు సార్. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కబ్జాలో మేమే ఉండి పంట పండిస్తున్నాం సార్. పుస్తకాలను చూపించుకుంటూ ఈ పొలం మీది కాదు, మీ నాన్న చనిపోయిండు, మీ అమ్మ చచ్చిపోయింది, మీకు కానే కాదు, ఇది మాది పొలం అని చెప్పేసి దౌర్జన్యంగా పొలంలో మేము పని చేస్తుంటే వచ్చి మమ్మల్ని ఒర్రెలో తొక్కేయడం కొట్టేయడం చేస్తున్నారు సార్. బైండ్ అవర్లో కూడా ₹1,00,000 పెనాల్టీ మాకేసారు సార్, 50,000 వాళ్ళకేసారు. అయినా సరే మళ్ళీ వాళ్ళు పొలంలోకి వెళ్ళినారు సార్. వాళ్ళు పొలంలోకి బైండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత కూడా వెళ్ళిరు సార్ అని చెప్తే మాకు తెలియదమ్మా, ఇది మీరు ఎట్లా చేసుకుంటారో చేసుకోండి, మేము వచ్చి కాపలు ఉండాలా. पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए माकलूर मंडल के टीआरएस पार्टी यू सदर में अवामी नुमाइंदों ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। माकलूर मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी मंडल यू सदर भूषण के जेरे निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की कोरोना से सेहतियाबी के लिए मौजमी वाक़ वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए इनकी सेहतियाबी व उम्र दराज के लिए दुआएं की। इस प्रोग्राम में माकलूर एमपीपी, मामड़ीपल्ली सरपंच, एमपीटीसी यू सेक्रेटरी विनोद, मौजे के सदर गंगा रेड्डी व टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान दीगर ने शिरकत। तिम्मापुर देहात में गंगम्मा तल्ली मंदिर के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी देने वाले रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी संगम के मेंबरान व अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार तशक्कुर। बालकुंड हल्के मोरतार मंडल के तिम्मापुर देहात से वाबस्ता गंगापुत्रा संगम के मेंबरान ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए गंगम्मा तल्ली मंदिर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश करने पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर गवर्नमेंट इंडोमेंट डिपार्टमेंट के तहत 40 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिका प्रोसीडिंग कॉपी को टीआरएस कायदीन की मौजूदगी में पुत्रा के मेंबरान अवामी नुमाइंदों को हवाले करने की बिना पर गंगापुत्रा के मेंबरान ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच गड़म चिन्ना रेड्डी, नायब सरपंच जी रवि, जेडपीटीसी रवि, मंडल सदर इलैया व दीगर ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ
51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जिले निजामाबाद के CPM सेक्रेटरी ए रमेश बाबू के जेर निगरानी पार्टी दफ्तर में मगरबी बंगाल के साबिका CM ज्योति बासु की 12वीं बरसी तकारीब में शानदार इनेकाद। जिले निजामाबाद के CPM सेक्रेटरी ए रमेश बाबू के जेर निगरानी में पार्टी दफ्तर में मगरबी बंगाल के साबिका चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु की 12वीं बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिका CM ज्योति बासु के दौर इख्तिदार में फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 30 साल बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए अपनी एक अनोखी छाप छोड़ने में कामयाब होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले के सेक्रेटरी व मेम्बरान पेद्दा वेंकट रामलू, नूरजहां, सब्बानी लता, P वेंकटेश, M गोवर्धन, जिले कमेटी मेम्बरान Y गंगाधर, K गंगाधर, J गंगाधर, जिले के कायदीन लिंगा व दीगर ने शिरकत की। కొనియాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అది కేవలం మార్క్సిజం వల్లనే సాధ్యమైంది. అట్లాంటి ఏదైతే మనం రోజు చెప్పుకుంటామో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరుల చేతిలో భూములు ఉంటే ఏ రకంగా తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడుకోవచ్చు। किसान मुखालिफ पॉलिसियों को रूबे अमल में लाने वाली मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश करने का माकरून मंडल MPP मास्ता प्रभाकर ने किया इजहार। माकरून मंडल के मुकाम पर MPP मास्ता प्रभाकर के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने मरकजी हुकूमत की जानिब से खाद की कीमतों में 50 से 100% इजाफा करते हुए किसानों पर मजीद माली बोझ आयद करने पर बरहमी का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों के लिए मुतारफ करदा स्कीमात के तहत रास्त तौर पर रकूमात इनके बैंक खातों में जमा करने के बायस BJP चीफ मिनिस्टर की मकबूलियत से खौफजदा होकर गुमराह कुन बातों के जरिए अवाम और किसानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अवाम सब कुछ जानती है। इनकी हकीकी हमदर्द CM KCR होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर B सत्यम, TRS कायदीन S सुधाकर, चिन्ना रेड्डी, प्रवीण, सरपंच MPTC व दीगर ने शिरकत की। 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తూ, రైతు బంధు ఇస్తూ, రైతు బీమా ఇస్తూ, నాణ్యమైనటువంటి కరెంటును ఇస్తూ, ఎక్కడ నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాలను అందిస్తూ, ఎక్కడ కూడా రైతు నష్టపోకుండా మొన్నటి వరకు మొన్నే ఈ వర్షాకాల సీజన్లో 1,50,000 మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లను కొనుగోలు చేసినటువంటి ఘనత మన ప్రభుత్వానికి KCR గారి ప్రభుత్వానికి దక్కింది। शहर निर्मल में वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबी इजलास का इनेकाद। मौजूदा दौर में बढ़ते हुए अवामी मसाइल और संगीन हालात के पेश नज़र तालीमी याफ्ता अफराद हक की आवाज़ को मंजरेआम पर लाने के गर्ज से सहाफ़त के मैदान में कदम रख जिससे कुशल तक अवामी मसाइल के हल में कामयाबी हासिल हो रही और तेज रफ्तार दुनिया से वाकिफियत हासिल हो रही। ऐसे उभरते हुए बेबाक सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है, जिससे सहाफ़ियों को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन सहाफ़ियों के मसाइल के हल और सहाफ़ियों के हुकूक हासिल करने की गर्ज से निर्मल जिले सतह पर वर्किंग जर्नलिस्ट प्रिंट और सोशल मीडिया एसोसिएशन कमेटी की तश्कील के लिए इजलास सदारत और सरपरस्ती रशीद आलम अल हफीज़ी चीफ एडिटर दबंग सहाफत अमल में आया, जिसमें निर्मल जिले के मुख्तलिफ मुकामात भैंसा, मधुल, खानापुर के अलावा दीगर मुकामात से सहाफ़ियों ने शिरकत की और तमाम की मुतफ़िक़ा राय पर मोहम्मद उस्मान चीफ एडिटर HB6 को बहसियत सदर और जनरल सेक्रेटरी शेख अहद साहिल चीफ एडिटर ग्लोबल स्पीकर्स व सहाफ़ी रोजनामा खासिद के अलावा नायब सदर में श्रीनिवास चीफ एडिटर खानापुर, जाहिद हाशमी नुमाइंदा रोजनामा खासिदीन, नायब मोतमिदीन में राम प्रसाद चीफ एडिटर, RP नायब निर्मल, अहमद इम्तियाज अली निर्मल, खाजिन कृष्णा निर्मल का इंतखाब हमें मिलाया गया, जबकि एसोसिएशन के सरपरस्त रशीद आलम अल हफीज़ी चीफ एडिटर रोजनामा दबंग सहाफत और अलवेला हनुमंत रोजनामा लोक जागरण होंगे। इसके अलावा अराकिन आमिला में खैसर पाशा खानापुर, अफरोज खान आफ्ताब भैंसा, आईना निजामाबाद, अब्दुल अजीम इंडिया समेत अब्दुल रफी बाबा खानापुर, अफसर खान आफ्ताब, शेख अहमद में चीफ एडिटर T6 खानापुर, सहाफ़ियों में शहाबुद्दीन खानापुर, इरफान अहमद भैंसा, मुबीनुद्दीन भैंसा, अली बादशाह निर्मल, मोहम्मद रिजवान अहमद, मोहम्मद काशिफ निर्मल, अब्दुल जमील, जब्बार अहमद के अलावा दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुंतखब अहदेदारों ने तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया और तंजीम के तमाम मसाइल के हल की जदोजहद का वादा
وعدہ کیا۔ صحافیوں کی کمیٹی تشریف آئی ہے، میں زیادہ تو وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن انشاءاللہ بہت سے لوگ اپنے اظہار خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، تو الحمدللہ جو آج کی جو صحافیوں کی جو تنظیم، جو جرنلسٹ جو آج کمیٹی تشکیل دی گئی، ویسے تو دیکھا جائے تو آئے دن ہم اخبارات کے اندر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کس طرح سے یوٹیوب پر اندر جو چاہے چھوٹا سے گھٹنا سا پیپر ہو، اس کے حالات بعض جو سینئر صحافی ہیں جو اکاڈیمین والے ہیں کس طرح سے ان کو پریشان کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل ہیں، اور انشاءاللہ بعض جگہ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں پر کیا صحافیوں کو جو چھوٹے اور بڑے کی بنیاد کے اوپر دبایا جا رہا، تو انشاءاللہ میں آج ہمارے صدر صاحب سے انشاءاللہ اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ آپ جس طرح سے آپ کو لوگ انسانی اقدار کی بنیاد پر بھیمگل مدرسے کی فارغین کا مثالی کارنامہ، گزشتہ 10 سال کے دوران حافظ قرآن بننے والے طلباء کی جانب سے بازار میں ہندو مسلم اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت لنگر کا اہتمام۔ منڈل بھیمگل ضلع نظام آباد تلنگانہ کے مدرسہ دارالعلوم امدادیہ کے گزشتہ 10 سال کے دوران حافظ قرآن بننے والے طلباء کی جانب سے آج بازار کے دن ہندو مسلم اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے امن و امان کی فضا کو عام کرنے کی نیت سے جامع مسجد بھیمگل کے روبرو لب سڑک تمام ہی بندگان خدا کے انسانوں کے لیے بلا لحاظ مذہب لنگر کا انتظام کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور کھانا تناول کیا، اور برادران وطن نے بھی اس کام کو خوب سراہا اور کھانے میں شریک رہے۔ اس موقع پر ذمہ داران نے کہا کہ اس طرح کے کاموں سے گاؤں کی فضا کو باہم استوار رکھنے اور ہندو مسلم اتحاد کو عام کرنا ہے۔ آج یہ پروگرام پورے حسن و خوبی کے ساتھ انجام پایا اور تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کی گئی کہ اللہ پاک اس اقدام کو قبول فرما کر خیریت اور اس کے واسطے سے ہو رہے ملک میں امن و امان کی فضا کو عام فرمائے۔ دارالعلوم محمدیہ کی فارغ طلباء کے اس مثالی اقدام کو خوب سراہا گیا۔ ضلع نظام آباد کے تاریخی شہر بھیمگل میں جہاں گزشتہ 40 سال پہلے ایک دینی ادارہ مدرسہ دارالعلوم امدادیہ کے نام سے قائم کیا گیا تھا، اس ادارے میں جو طلباء 1982 سے 1992 تک ان 10 سالوں میں حافظ قرآن بنے تھے، الحمدللہ آج ان طلباء کی جانب سے اور ان حفاظ کی جانب سے پورے علاقے کے لیے ایک بہترین مثال قائم کرتے ہوئے لنگر قائم کیا گیا ہے۔ چونکہ اس علاقے کے اندر ہر پیر کو بازار ہوا کرتا ہے اور یہاں پر بندگان خدا کی ہزاروں کی تعداد آتی ہے، تو اس کے لیے ان حفاظ نے ایک مثالی اقدام اٹھایا اور آنے والوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا۔ انشاءاللہ یہ لنگر مہینے میں ایک دن چلے گا۔ آپ حضرات دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکت دے۔ اگر استطاعت ہوتی تو انشاءاللہ ہر ہفتہ چلے گا، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اور ترقی ہو اور یہ لنگر روزانہ چلے۔ یہ بھیمگل کی تاریخی جامع مسجد کے سامنے یہ لنگر لگایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ہندو مسلم اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے برادران وطن کی خدمت میں یہ ایک عظیم خدمت پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر کو بے حد قبول فرمائے۔ اس موقع پر یہاں ہمارے ساتھ بھیمگل شہر کے سارے ذمہ داران ہیں، یہاں کے ذی اثر افراد ہیں۔ آپ سب کے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو بے حد قبول فرمائے اور اس کے ذریعے تلنگانہ میں کورونا کے 2047 نئے کیس، 3 اموات۔ تلنگانہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 22,048 تک پہنچ چکی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,047 افراد کو کورونا کی توثیق ہوئی ہے۔ وائرس کے سبب 3 اموات واقع ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں 22,048 مریضوں میں جملہ 2,158 مریض دواخانے میں زیر علاج ہے، جن میں 735 سرکاری دواخانے میں زیر علاج ہے، جبکہ 1,423 مریض خانگی و کارپوریٹ دواخانوں میں اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے بلٹن کے مطابق 544 مریض آئی سی یو میں زیر علاج ہے، جن میں 156 مریض سرکاری دواخانے کے آئی سی یو میں ہے اور 388 مریض خانگی دواخانوں کے آئی سی یو میں زیر علاج ہے۔ دواخانوں میں موجود کورونا وائرس کے مریضوں میں 900 مریض ایسے ہیں جنہیں آکسیجن درکار ہے اور 308 مریض سرکاری دواخانوں کے آکسیجن بیڈ پر ہے، جبکہ 592 مریض خانگی و کارپوریٹ دواخانوں میں زیر علاج ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 55,883 افراد کے کورونا وائرس معائنے کیے گئے اور ان میں 9,829
36 मुआयनों की रिपोर्ट मौसूल होना बाकी है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1174 कोरोना वायरस मरीजों की निशानदेही हुई, जबकि गुज़िश्ता यौम शहर हैदराबाद में 1075 मरीज पाए गए थे। मेरचल मलकाजगिरी में 178 मरीज की निशानदेही की गई है और जिले रंगारेड्डी में 140 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से जिला में कोरोना वायरस की तीसरी लहर और मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है और जिन अजला में मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, इन अजला में खुसूसी तवज्जो दाहनी और मुआयनों में इजाफे के इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस आइंदा 2 हफ्ते में बेतहाशा इजाफे के खदशात। वायरस को रोकने महकमे सेहत की जानिब से हुकूमत को मुख्तलिफ सिफारिशात, बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के इंतजामात की कोशिश। महकमे सेहत की जानिब से रियासती हुकूमत को आइंदा 2 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के खदशात के मुतालिक रिपोर्ट रवाना करते हुए वायरस को फैलने से रोकने के इक़दामात के मुतालिक सिफारिशात की गई हैं और कहा गया है कि अब जबकि तिल संक्रांत का त्यौहार खत्म हुआ है कि 10 यौम में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दुगना इजाफा हो सकता है, क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता 5 यौम के दौरान सफर किया है और त्यौहार के मौके पर एक दूसरे से मुलाकातों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कई मुकामात पर गहमा गहमी की सूरत हाल भी देखी गई है। अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 15 यौम में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के अलावा आइंदा 4 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद में इजाफे के खदशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट रियासती हुकूमत को रवाना कर दी गई है, जिसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के सिलसिले में मुख्तलिफ सिफारिशात की गई हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से 17 जनवरी को मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में महकमे सेहत की जानिब से की जाने वाली सिफारिशात का जायजा लेने के बाद इस सिलसिले में क़तई फैसला किया जाएगा। रियासती महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के साथ मरीज की सूरत हाल दवाखाने में शरीक किए जाने की जरूरत पड़ने के मुतालिक भी तफसीली आगाही हासिल की जा रही है और इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम सरकारी दवाखानों में बेहतर से बेहतर सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जर्नलिस्ट पर हमला करने के मुतालिक MP डी अरविंद व बीजेपी कायदीन की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों को PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने मनगढ़ंत बातें करार दिया। जिले कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अर्जी दाखिल करने के लिए आहिबे जोड़े की जानिब से इक़दाम खुदकुशी करने का वाक़या। दरगाह शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ पर वक्फ बोर्ड की जानिब से अंधेरी नगरी चौपट रात दरगाह शरीफ की निगरानी के लिए कमेटी का क़याम नहीं। 2 माह बाद दरगाह शरीफ के खोले गए गले, लेकिन ना ही कोई कमेटी, ना ही कोई सरकारी ओहदेदार और ना ही कोई सहाफ़ी मौजूद। रकम की वाज़ेह गिनती नहीं, सोने चांदी का भी हिसाब भूल। इंसानी इक़दार की बुनियाद पर भीमगढ़ मदरसे के फारिकीन का मिसाली कारनामा। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान हाफिज़ कुरान बनने वाले तलबा की जानिब से बाजार में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत देते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लंगर का एहतमाम। सोशल मीडिया पर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने वाले अफराद के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरी सदर शकील अहमद फाजिल व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता कुछ यौम से मोटरसाइकिल, गाड़ी व ऑटो की सरक़े में मुलविस सारिकों को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल 2 ऑटो को तहवील में लेने का CP KR नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इज़हार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।